Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapit Moa. Again, welcome all of you in this class 10th mathematics subjects, and already we discussed about the four previous lectures regarding the polynomials. So our unit number 2 is going on, so everyone is knowing that about the all the things. But at the last, we were discussed about the division algorithm for the polynomials and some of the problems you face in the last method. So again, I will conduct here the division algorithm for this polynomials part, and all the examples I already given into the examples, and all the examples from example number 6 to 9, that is already given into the last homework. So let us move on this division algorithm for these polynomials. In your textbook, you can see that. Okay, suppose sometimes we are using at the last that the cubic polynomials. You all know that the cubic polynomials means it has the three zeros over there in the uh, biquadratic, even the quadratic polynomials having the two zeros are there, and cubics maximum three zeros are there. So among them, if we take any kinds of the examples, for examples, we have to take any polynomials that is purely cubic polynomials. So it has the 3 degrees. Everybody knows that the 3 degrees, whatever the polynomials having the 3 degrees, that we can say that it's a cubic. So which method we are using to dividing one polynomials by the others, that time we are using the division algorithm. So in the first example, at the last we discussed these things, and you also done this homework into the last, but those who are not understands well, again it considered that, okay, suppose it will given here that divide 2x square plus 3x plus 1. Now we just move into the some zooming positions over here, if you are not seeing well that. So divide 2x square plus 3x plus 1 by x plus 2. एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है. दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड. So 2x square plus 3x plus 1, that is one polynomial, and second one is x plus 2. How to divide with both of the things? Simply we know that here given that 2x square plus 3x plus 1 is that. So first thing is that so inside this first position we have to use this algorithm's position. So that is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Again I repeat these things. Dividend is equal to divisor and quotient plus remainder. That is also we studied into the class 9. But this particular division algorithm, we have to using this particular equation, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So that way we have to process to divide a polynomial by a quadratic. So just we have to check it into the first example here. So 2x square plus 3x plus 1, that is our dividend is there. X plus 2, that is our divisor. First one is dividend, this is our divisor, and this is whatever we got at the end of. So again this is a dividend, this is a divisor. After dividend and divisor multiplied with the quotient, ये आपका क्वेश्चन मिलेगा.
एंड देन आफ्टर वट एवर वी एड द रिमाइंडर। तो ये जो चार पार्ट है, ये चारों चार पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं और उसके ऊपर से ही हम उसको डिवीज़न में डाल सकते हैं। ये प्रोसीजर बहुत इजी है, बट ये प्रोसीजर कभी कभी दिक्कत तभी देती है जब हम उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल्स को समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे तो इजी है कि 2x² + 3x + 1 है। तो अब ये पोजीशन पे एक आपका डिविडेंड है, डिविडेंड को किससे डिवाइड करना है? डिवाइज़र से। तो हम एक एक टर्म्स को डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी अर्लियर वीडियो में बता दिया है कि कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो 2x² को, अब जिसको भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है और मुझे किसी के डाउट्स मिले हैं उसके ऊपर से ये वीडियो फिर से मैं यहाँ आपको ये मेथड पूरी समझने की ट्राई कर रहा हूँ। 2x² डिवाइड विथ x + 2। सो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइज़र and first term of the dividend. So first term of the division, that is which one? 2x² is there. 2x² को किससे डिवाइड करना है? x से डिवाइड करना है। तो 2x² डिवाइड विथ x जब भी हम करेंगे, 2x² को x से डिवाइड करेंगे, तब x यहाँ पे x से कट हो जाएगा। मतलब जो रिमेन्स होगा वो हम क्वेश्चन में रखेंगे पहले 2x। तो हमारा ऊपर का पोर्शन आ गया 2x। अब 2x को x + 2 ये दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1। 2x को x के साथ, फिर 2x को 2 के साथ, और जो भी चीज़ हमें मिलेगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे। मतलब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 2 को 2x के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4x मिलेगा। तो इस तरह से हमें सेकंड स्टेप्स में कंसीडर होगा। अब हमें पता है कि जब भी दो चीज़ को एक पोलिनोमियल्स में से दूसरे पोलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन करना होता है, तब जो भी ओरिजिनल साइन होती है उससे हम अलग साइन यूज़ करेंगे। मतलब 2x² अभी हमें प्लस है हमारे पास, तो वो हो जाएगा माइनस, लाइक दैट वे। एंड देन प्लस 4x है, उसकी जगह हो जाएगा -4x। सिमिलर वे वी आर यूजिंग। नाउ न्यू साइन विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर। सो 2x² में से 2x² गया, मतलब ये प्लस और माइनस है तो ये कट हो गया। प्लस 3x -4x, सो इट विल बी कवर्ड एज -x। ये भी चीज़ हो गई। अब जो भी बचा है उसको डायरेक्टली साइन के साथ नीचे यूज़ कर लेंगे, -x + 1। अगेन हम सेकंड स्टेप में पहुंच गए। अब सेकंड स्टेप जो हमारा है, वो सेकंड स्टेप में हमारा पोलिनोमियल्स अभी क्या है? -x + 1। तो उसकी पहली टर्म और डिवाइज़र की पहली टर्म -x को x से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बचेगा -1। दैट विल बी पुटेड ओवर हियर, -1। अब जो -1 यहाँ पे आ गया, वो -1 को फिर से जैसे हमने पहले स्टेप में किया था, -1 को x के साथ, -1 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा -x -2, क्योंकि जब हम -1 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x बचेगा, और +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बचेगा। फिर से वही प्रोसीजर, माइनस है उसका प्लस हो जाएगा, और माइनस है फिर से माइनस है यहाँ पे, तो उसकी न्यू साइन होगी प्लस। तो अब हमें कौन सी साइन कंसीडर करनी है? जो न्यू एप्लीकेबल हुई है। तो -x + x, दैट्स वाई इट विल बी रिमूव फ्रॉम हियर, +1 + 2, दैट्स वाई वी गॉट हियर 3। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ पर्टिकुलर डिवीज़न। जैसे कि हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड जैसे बोलते हैं ना, इसको हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी बोलते हैं, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने अप्लाई किया। वैसे ये 6, 7, 8, 9 तक आपको एग्जाम्पल मैंने होमवर्क में दिया था। फिर से मैंने इसीलिए बताया
कि यदि किसी को कुछ दिक्कत है तो कर सकते। सो लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 2.3 नाउ। सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। शायद आपको यहीं से क्वेश्चन दिखाई देगा। Divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following, where p of x is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and सेकंड पॉलिनोमियल्स जिससे हमें डिवाइड करना है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे आपको दो पॉलिनोमियल दिया गया है और दोनों पॉलिनोमियल्स को आप कैसे कंसीडर करेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट वन पॉलिनोमियल्स इट शुड बी कंसीडर एज ए डिविडेंड, जिसको हम डिविडेंड समझेंगे, और दूसरे को हम डिवाइज़र समझेंगे। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी ट्रेडिशनल डिवीज़न करेंगे तो हम पहले यहाँ पे जो लिखेंगे वो हमारा डिविडेंड होगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ऐसे ही हम यूज़ करेंगे डिविडेंड का। और किससे हम डिवाइड करेंगे उसको, जो डिवाइज़र दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। इज इट क्लियर? तो ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे डिविडेंड और डिवाइज़र ले लिया, बाद में उसको कैसे हम कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट वन, यहाँ पे जस्ट वी हैव टू यूज़ द फर्स्ट वन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिविडेंड, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। उसको उसी पोजीशन के ऊपर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि डिविडेंड यानी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम कंसीडर करें तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब जो है वो हमारा डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है, और आप देख सकते हो कि डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइड विथ द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइज़र। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है नीचे और ऊपर एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे कट हो जाएंगे 2 तक, मतलब एक ही एक्स बचेगा, वो एक्स हमारा क्वोशन होगा। तो हम कहाँ पे लिखेंगे उसको, यहाँ पे एक्स, क्योंकि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास बचता है एक्स। अब वही एक्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र से। तो एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास यहाँ पे होगा, बट फर्स्ट वी हैव टू यूज़ हियर एक्स स्क्वायर, देन वी हैव टू यूज़ माइनस 2x। सो याद रखना है जो भी लाइक टर्म है उसके नीचे ही हम लिखेंगे। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन माइनस 2x आता है तो हम किसके नीचे लिखेंगे, 5x के नीचे, क्योंकि 5x ही वो 2x से लाइक टर्म में मिलता है। वही हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन पहले के स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब और 5x के नीचे माइनस 2x, जो भी साइन है वो एज इट इज़ रखने के बाद फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो सब्ट्रैक्शन का जो रूल है, प्लस है, वो उसको माइनस रखेंगे और जो माइनस है उसका हम प्लस रखेंगे। तो एक्स क्यूब अब नीचे माइनस एक्स क्यूब हो गया तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचता है वो भी टर्म यहाँ पे नीचे ले लेनी है, तो माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5x प्लस 2x, मतलब 5 प्लस 2 कितना होता है, 7 होता है, तो 7x, और माइनस 3 को नीचे उतार लेते हैं तो माइनस 3। तो आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इम्प्लीमेंट होगा। फिर हम उसको कंसिडर करेंगे वही प्रोसीजर से। तो हमारा अब हो गया इसी पोलिनोमियल्स का फर्स्ट टर्म हो गया माइनस 3x स्क्वायर, और हमारा डिवाइज़र तो है ही एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे।
तो एक्स स्क्वायर यहाँ से चला गया, तो अब हमारे पास बचा क्वेश्चन में -3। तो -3 हम क्वेश्चन में कहाँ पे रखेंगे, आपको पता है, एज इट इज़ -3। अब वो -3 को डिवाइज़र के दोनों टर्म्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो -3x² पहले बन गया, सो -3x², और -3 2 का हो गया +6। सो -3x² + 7x -3 में से -3x², यानी प्लस एंड माइनस का रूल जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। तो अब बचता है वो है -7x -3, -3 - 6 होता है -9, दैट्स वाई 7x -9। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखना है कि जब भी हमें रिमाइंडर में डिवाइज़र से x² है उससे कम डिग्री वाली मिले, मतलब यहाँ पे हमें मिला है 1 डिग्री वाला ना, 7x -9, और हमारा डिवाइज़र क्या था, x² -2 है, तो यहाँ पे x² -2 है, मतलब उसकी डिग्री 2 है। यदि उससे लेस डिग्री यदि रिमाइंडर में हमें मिल जाती है, देन दैट इज़ अवर फाइनल रिमाइंडर ओवर देयर। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ 7x -9 इज़ दैट। बट आपको लिखना कैसे है, क्वेश्चन कितना मिला, x -3 मिला, तो आपको लिखना है क्वेश्चन QX = x -3, एंड जो भी चीज़ हमें क्वेश्चन में बताई गई रिमाइंडर यानी R of x = 7x -9। तो इस तरह से आपको पूरी चीज़, क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें पूरी मेथड से ये सम इम्प्लीमेंट करना है। तो आई थिंक आई होप सो दैट एवरीवन इज़ गॉट दिस थिंग्स कि हाउ टू सॉल्व इट। यदि समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो देखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए एंड गॉट द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन, जो अभी ये लेक्चर 5 में यूनिट 2 के 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं, उसमें भी फर्स्ट रोमन हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं सेकंड स्टेप में, सेकंड सम के अंदर। तो सिमिलर वे वी आर यूजिंग द सेकंड, lecture number 5 is there. So inside the second one again we have to take the dividend of p of x is equal to x4 minus 3x² plus 4x plus 5 is there. Similar way we are using p of x is equal to x4 plus जो भी चीज़ हमें यहाँ पे गिवन नहीं है उसको यदि हम डिविजन्स में कंसिडर करते हैं, तब x4 के बाद 3 पावर वाली एक भी टर्म्स नहीं है तो हम उसको ले सकते हैं, बट उसका कोएफिशिएंट हम 0 ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है आपको कि जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन करते हैं, एक मेथड ऐसी भी है कि शायद आप एक भी टर्म्स को मिस नहीं करेंगे, वरना क्या हो सकता है कि अभी हमने पहले सम में देखा कि जहाँ पे लाइक टर्म नहीं मिलती है वो जगह खाली रहती है। तो यदि इफ़ वी आर यूजिंग लाइक दैट वे, x4 के बाद 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, ऐसे ही हम पूरी टर्म्स को अरेंज कर दें, तो इस तरह से भी हम टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि डिविडेंड आपका ओरिजिनली ऐसे दिया गया x4 minus 3x² plus 4x plus 5, बट उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन यू, x4 प्लस 0x³। और याद रखना जो भी टर्म्स आप ऐड करें वो प्लस साइन वाली ही होनी चाहिए, उसके आगे आपको एडिशन ही यूज़ करना है, ये याद रखना, कभी भी आप नेगेटिव साइन नहीं यूज़ कर सकते। समझ में आ रहा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे x³ की जो टर्म्स है वो मिसिंग है, क्योंकि x4 के बाद सीधा यहाँ पे स्क्वायर है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज़ विथ कोएफिशिएंट 0। 0x³ का मतलब होता है 0 ही होता है, वो ये टर्म पूरी 0 ही हो जाती है यदि हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ रिमेनिंग है, जो भी टर्म्स रिमेनिंग है वो एज इट इज़ लिखेंगे, -3x² + 4x + 5। ये समझ में आ गया, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी। दूसरी बात रही डिवाइज़र की।
डिवाइज़र में आपको दिया गया है टर्म्स सम में, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, उसको भी आप रीअरेंज कर सकते हो। एक्स स्क्वायर, फिर आप एक्स की टर्म्स ही साथ में ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये लिख देने से आपकी जो डिवीज़न करने की प्रोसीजर है, कैलकुलेशन करने की प्रोसीजर है, वो इजी हो जाएगी। सो इस तरह से हम पूरे डिवाइज़र में ये पूरी जो प्रोसीजर है लॉन्ग डिवीज़न की, उसमें ऐसे रख देंगे एक्स फोर्थ प्लस ज़ीरो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। सिमिलर वे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जो हमने डिवाइज़र को भी रीअरेंज किया तो ऐसे हम रखेंगे। अब जैसे ही दोनों चीज़ को हम मेंशन कर देंगे तो अब दोनों चीज़ के ही फर्स्ट टर्म के ऊपर ही हमें फोकस करना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है एक्स फोर्थ और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो एक्स फोर्थ डिवाइड विथ एक्स स्क्वायर हम करेंगे, तो फर्स्ट टर्म हम क्या करेंगे, दोनों की फर्स्ट टर्म को ही कंसिडर करना है। तो एक्स फोर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा टू तो चला जाएगा, यहाँ से भी टू गया तो बचा एक्स स्क्वायर, तो वो हमारा क्वेश्चन बनेगा एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो एक्स स्क्वायर जैसे ही हो गया तो एक्स स्क्वायर का डिवाइज़र के ईच टर्म से हमें मल्टीप्लाई करके ये स्टेप बनाना है। तो एक्स स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स फोर्थ आएगा, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, और एक्स स्क्वायर का प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। फिर से जहाँ पे आपको प्लस दिखता है वो वहाँ पे आप माइनस करो, प्लस दिखता है वो माइनस करो, प्लस दिखता है माइनस करो, माइनस दिखता है वहाँ पे प्लस करो। जैसे ही आपकी साइन हो जाए फिर न्यू साइन के साथ ये चीज़ जो है यहाँ पे उसको कंपेयर करो। तो एक्स फोर नीचे आपका हो गया माइनस एक्स फोर, तो ये कट हो जाएगा। ऊपर है प्लस ज़ीरो एक्स क्यूब और नीचे है प्लस एक्स क्यूब, तो ज़ीरो एक्स क्यूब की कीमत तो ज़ीरो ही रहेगी, तो आपका आंसर प्लस एक्स क्यूब ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है। फिर नेक्स्ट टर्म माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों के बीच एडिशन हो जाएगा, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस फोर एक्स स्क्वायर। सो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, बाकी की दोनों टर्म्स को नीचे आप खींच लो साइन के साथ, प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। फिर से वही प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे पूरी प्रोसीजर को हम एंड तक, कब तक हमें लेना है, आपको याद रहना चाहिए कि आपका जो डिवाइज़र है वो उसकी डिग्री एक्स क्यूब है, तो जब तक यहाँ पे ज़्यादा डिग्री आती रहती है तब तक आपको उसको आगे बढ़ाना है। इज़ इट क्लियर? तो बाय द वे यहाँ पे आपका आंसर जो आता है वो 8 आता है। सो दिस इज़ द फुल आंसर ऑफ इट, और बाद में आपको लिखना है कि क्वेश्चन क्या है एंड रिमाइंडर क्या है। इज़ इट क्लियर? तो ये पूरा सम यहाँ पे सेकंड सम जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको, ये पूरा सम आप अभी भी यहाँ से लिख सकते हो कि हाउ वी गॉट द 8 फ्रॉम हियर। यू कैन ऑल्सो पोज द वीडियो एंड यू कैन डायरेक्टली राइट इट। इज़ इट क्लियर? तो ये हुए दो क्वेश्चन 2.3 के, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब रिमेन जो क्वेश्चन है वो आज के होमवर्क में आपको ट्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 6 to 9 एग्जाम्पल्स भी कवर किए हैं। फिर से यदि नहीं किए तो फिर से 6 to 9 एग्जाम्पल कवर कीजिए। ये आज के दो मेथड फिर से मैंने बताई है, एक एग्जाम्पल का और ये दो क्वेश्चंस और भी बताए। तो ये लॉन्ग डिवीज़न है, दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू। सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस थिंग्स up to the end of how to write the way of it and how to write the answer of it. That is the important things for here, isn't it? So in today's homework you have to covered the 2.3 के बाकी के दो क्वेश्चन आज आपको कवर करने हैं। यदि आपको सारे क्वेश्चन आ जाता है then it's okay. So you have to complete the full exercise of 2.3. Otherwise you have to do only two questions, third and fourth only. Is it clear?
So in today's homework you have to cover the exercise 2.3, and one more thing, one instruction to everyone, that you have to make a fair book of each and every exercise. You have to write with the examples and whatever I given you to the key points of it. So first you have to mention the key point in your fair book, then you have to use the whole exercise 2.1, 2.2 and 2.3. All the exercise questions you have to write in your fair book, and whenever I required to ask for submitting your fair book, that time you have to submit these things. Is it okay? So you must be create or make a one fair book for mathematics subjects. So without failing you have to use it. So I hope so that everyone understood well of this method and you practice more on it. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you very much.